So we have done about that कि कैसे किया है, क्या किया है, education and health. Now after these many efforts also, still India is facing a major problem of unemployment. Okay, a major problem of unemployment. Now let us recall the definition of unemployment. What does the unemployment means? What is unemployment according to you? Who is willing to work but cannot find job? The people who are willing to work but they are not getting the job. हमने उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था ना शायद अनएम्प्लॉयमेंट का, कि नहीं? But we'll revise. If you're done also, we'll revise. Okay. Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children, and helped her husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ an unemployed? We are still not, because they don't want to work. Unemployment is only calculated when you are willing to work and you are not getting the work. Okay, that is unemployment. Dhairya. Dhairya. Yes, ma'am. Why are you not replying? And please keep your camera on. मैम यहाँ पे वो बारिश हो रही है ना, आपकी आवाज बराबर आ नहीं रही. Keep your camera on. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Shitu, and Sheila can be counted as unemployed. The workforce population includes people from 15 to 59 years. Sakal's brother and sister do not fall within the age group of so they cannot be called unemployment. Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Sakal's grandparent, although not mentioned in the story, cannot be, because they must be above the age of 60. So the working age is considered from 15 to 59 years or 60 years. Yes. So if you are falling in this age category and you wish to work and you are not getting the work, then only you are considered as unemployed. Okay. Now, in case of India, we have unemployment in rural and urban areas. Do you agree कि unemployment सिर्फ urban areas या सिर्फ rural areas में होता है? ऐसा आपको लगता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में खाली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है? नो मैम, दोनों एरिया में होता है. कहीं भी हो सकता है. दोनों में होता है. यस, ठीक है ना? सो अब हम लोग देखेंगे दोनों एरिया में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. Now, however, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. ये वाले दोनों unemployment you will mostly find in rural areas, and this educated unemployment you will be finding in urban areas. Because, yes, We can't see the board. you don't need to see the And your board. board is very blur. Huh? Your board is very blur. I have pinned myself. I don't know what to do it then. Let's see. I have just written seasonal disguise and educated unemployment. The name only. So seasonal and disguised, and these two employment majorly found in rural areas, whereas educated unemployment you find in urban areas. Okay. Educated unemployment. Adhik. Yes, ma'am. Why are you 10 minutes late to the class? Ma'am, I was network issue. I connected by my Wi-Fi. Ma'am, mobile data नहीं आ रहा था. Make sure you join the class 5 minutes early every day, so this issue doesn't happen. Okay. आगे से जो भी मेरे क्लास में लेट आएगा, re-entry, I know, I will allow them, because mostly नाम मुझे याद रह जाते हैं. Because in this 9th standard, I have 20 to 25 kids only. But पता नहीं कोई आया है, I'm not going to allow them. Kenit 5F कौन है, I don't know. Okay.
Please, if any of your friends call, I am not allowing them, tell them to enter with their original name and ID. Urban areas have mostly educated unemployment. Now, we need to understand what is seasonal unemployment and what is disguise. Seasonal unemployment, you can just connect. Anybody can have any idea what does the seasonal unemployment, like seasons. You have always learned seasons in weather and climate. Okay, Vasu. मैम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस मैम कि आधे साल खेती का काम होता है मैम। इस साल मैम आधे साल जैसे किसी खेती का काम है, जब कटाई होती है खेती की, तो फिर मैम जो get employment like harvesting or agriculture cultivation is related to monsoon and all that, so you get work during that days only, and rest of the year you are ideal. Yes, it might be 6 months also, it might be 4 months also, it might be 3 months also, yeah, depending upon your requirement on the season of harvesting and maybe cultivating. Yes. Chalo. Now, seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. Okay, underline करो, ये 1 marker में भी आता है, long questions में भी कई बार आता है. आपको seasonal and disguised unemployment या seasonal and educated unemployment, ऐसे सब difference between भी 1 marker 2 marker का है. Okay. People depend upon agriculture usually face such kind of, who face this problem? People depend on agriculture face this problem. Yes, but nowadays if you find yes मैम दिया वेटिंग में है। मैम मुझे कैसे पता चलेगा? उसका आईडी पता है, कोई अजीब से नाम से वो एंटर हो रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो वेटिंग रूम में है? एक बच्चा है वेटिंग रूम में, बट पिछली बार कोई ऐसे ही फेक आईडी से हमारे क्लास में आ गया था। अच्छा, अभी उसका कॉल आया कि मैं वेटिंग है, में पर उसको बोलना नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं लूंगी मैम, क्योंकि फिर पूरा क्लास वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, कुछ भी कमेंट्स करके चले जाते हैं क्लास में। ठीक है। This is Diana who put the camera on right now. बच्चा please every time come with your original ID with your roll number. Okay. Now, so people depend upon agriculture usually face this, but nowadays you will find people facing in the cities also this, in urban areas. Do you know you will find certain people are you find more number of people engage in a particular work during the festive season. आप देखना टेम्परेरी, जैसे उत्तरायण आता है आपका, तो आपको टेम्परेरी वो शॉप्स रोड के किनारे मिल जाएंगे जो काइट फ्लाइंग करते हैं, ये करते हैं। वो कैसे होता है, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ही आपको मिलेंगे, फिर वो सारे खाली हो जाते हैं। अब वो सडनली जो टेम्परेरी शॉप्स लगाते हैं, तो वो आदमी परमानेंट पूरे साल तो वो काम नहीं करता है ना, सो दे हायर। और आप देखना वहां पे ज्यादातर लोग जो टेम्परेरी काम करते हैं, है ना, वो लोग ज्यादातर या तो यंगस्टर्स होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं जो अपने काम से रिटायर हो गए और एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आते हैं, बिकॉज दिस इज टाइम बिग। ओके, there are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. So in harvesting, in cultivation also, जब सीड सोइंग होता है तब आपको ज्यादा मैन पावर चाहिए। फिर क्या होता है, सीड सो कर दिया, फिर थोड़े टाइम तक आपको सिर्फ वाटरिंग करना होता है या पेस्टिसाइड्स डालना होता है या आपको फर्टिलाइजर डालना, तो उसके लिए आपको यू डोंट नीड मोर मैन पावर। बट बीडिंग के टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम यू नीड, एंड देन you need more labor. Once the product is harvested, it needs to be packed in the sacks and to be placed in the transportation or something. Yeah, so rest of the month they are ideal. Ab it is very difficult for these type of people to survive. Yes, this is very difficult for these type of people to survive. See, out of the whole year, see sowing, यानी ये अभी जो सीजन है ये सोइंग सीजन है, आप मॉनसून देख रहे हो कितना अच्छा है अभी, है ना। अब ये कैसे होगा, 15-20 डेज, 1 महीने तक मेहनत ज्यादा है, फिर 1 महीने के बाद 1-2 महीना उनके पास काम नहीं होगा, फिर वो वीडिंग का टाइम आ जाएगा, जब वो एक्स्ट्रा ग्रास हो जाते हैं उसको वीड करना, ठीक है। वो कब आएगा, 1 मंथ अराउंड सितंबर अक्टूबर, और फिर हार्वेस्टिंग के टाइम 2 मंथ्स जैसा काम होता है उनका। सो पूरे साल में कई बार दे गॉट ओनली जॉब फॉर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स।
एंड 7 मंथ से आइडियल. डू यू थिंक सो द सीजनल, जो लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हैं, विद दिस 5 month of earning they will be able to satisfy the basic needs of the family? No, ma'am. No, ma'am. So what do you think, so how they can manage it? By doing other seasonal work. And ma'am, other non-farm. अदर सीजनल वर्क क्या होगा बोलो? फट से उसने बोल दिया अदर सीजनल वर्क. चलो मुझे एग्जांपल दो. सीजन बेटा हर चीज का, गांव में एग्रीकल्चर का एक लिमिटेड सीजन होता है. सीजनल वर्क में और क्या ऑप्शन आ गया बताओ? विलेज में आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली अर्बन एरियाज. वासु मैम जब उनके पास 5 month का तो काम हो गया मैम, लोग अपनी बेसिक नीड उसमें पूरे कर लेंगे. तो मैम जब उनके पास और वर्क नहीं होगा तो मैम वो दूसरी जगह माइग्रेट हो जाएंगे मैम. लाइक वो लोग अर्बन एरियाज में जाएंगे ताकि उनको और आउट द अर्बन एरियाज और दे स्टार्ट डूइंग ऑड जॉब्स. जैसे अब कईयों को क्या करते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कईयों को ड्राइविंग आता होता है, टेम्पो ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर्स बन जाते हैं. आर यू गेटिंग इट? तो इस टाइप का, बट स्टिल इट इज नॉट फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ कंटिन्यूअस इनकम. जरूरी नहीं है ना कि वो उनको मिलेगा ही. और हर एक, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू माइग्रेट टू द सिटीज. सम ऑफ देम डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल, सम ऑफ देम डोंट फाइंड इट एसेसिबल, नहीं जा पाते, या उनको लगता है कि हम सिटीज में जाके कोई और काम नहीं कर पाएंगे, है ना? यस खुशम, आप क्यों रेस कर रहे हो बेटा हैंड? मैम मैं लोअर करना भूल गया हैंड को. Now, second is in case of disguised unemployment, people appear to be employed. Disguised employment में कैसे आपको दिखेगा वो आदमी काम कर रहा है, but there is no output or monetary gain. See, my work is there. Suppose I am a farmer in a field. I have my own field of 1 hectare. Okay. Me and my brother is able to sow the field. हम लोग कर लेंगे सोइंग दोनों मिलके. 1 hectare तो है ना, हम लोग कर लेंगे. Then maybe my brother's wife and my husband, when they are free, or maybe my husband doesn't have any other work, they come and join us in doing sowing the work. They help us. अब उनके हमें हेल्प करने से क्या वो 1 hectare लैंड का आउटपुट बढ़ जाएगा? यस माही. माही No, ma'am. नहीं बढ़ेगा. जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा, सपोज उस 1 hectare लैंड में से मुझे 10,000 क्विंटल व्हीट मिलता है. मैं और मेरे भाई ने काम किया और हम दोनों के पार्टनर्स ने काम किया, हम 4 जनों ने काम किया, बट स्टिल एंड ऑफ द सीजन वी हैव ओनली 10,000 क्विंटल ऑफ व्हीट. आउटपुट नहीं बढ़ा. अब मैं मार्केट में बेचूंगी तो रेट तो मुझे उतना ही मिलेगा. किसी भी तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ मुझे. दैट इज डिसगाइज. वो दोनों काम भी कर रहे हैं बट उनको कुछ भी नहीं मिल रहा. आया समझ में? नॉर आई एम पेइंग देम ऑन वेजेस, क्योंकि वो तो फैमिली मेंबर्स हैं. यस माही. But if 4 people will work on that field, then the work will be complete early, and you can do other non-farm activities. बेटा पॉसिबल नहीं है ना. अगर मेरा काम 10 दिन का था, उनके काम उन्होंने 2 या 3 दिन काम किया, वो करके 8 दिन हो. 2 दिन में मैं क्या नॉन फार्म एक्टिविटी कर लूंगी जाके? और हर एक के बस की बात नहीं होती नॉन फार्म एक्टिविटी. मतलब मैं दुकान खोल 2 दिन के लिए दुकान खोल के बैठ जाऊंगी? नॉट पॉसिबल एट ऑल. मतलब अगर कर भी लूंगी तो उनका मेरे साथ काम करने से मुझे वैसे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना. मैं उनको तो कोई सैलरी नहीं दे रही, उनको मैं कोई अमाउंट नहीं दे रही, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही. सो दे आर कंसिडर्ड टू बी डिसगाइज्ड. मतलब वो काम कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो दिखेगा ही नहीं. दैट इज डिसगाइज्ड. अब कई बार ऐसा होता है, पता है, आप अभी तो स्कूल नहीं जा रहे, पर जब आप पहले स्कूल जाते थे ना, कभी कभी ऐसा होता था, पता है, आपके फ्रेंड्स होते थे, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला होता था, या आपका सपोज आपके भाई बहन होते हैं, आप उनको हेल्प करते हो या वो आपको आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं. सपोज एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ. या आपकी मम्मी जब आप छोटे थे 6-7 में आपके प्रोजेक्ट्स में और असाइनमेंट्स में कुछ कुछ हेल्प करके देती थी. अच्छा, अगर आप वो कॉम्पिटिशन या प्रोजेक्ट्स में आपको अच्छे ग्रेडिंग मिल गए तो मम्मी ने हेल्प की, मम्मी को ग्रेडिंग मिलेंगे?
नो मैम, भाई बहन ने हेल्प की, भाई बहन को ग्रेडिंग मिलेंगे? नो मैम, ठीक है, आपने भाई बहन को हेल्प किया और भाई बहन के ग्रेडिंग अच्छे आए, किसी के भी छोटे हैं तो आपको क्या मिलेगा? ओके थैंक यू से काम खत्म, स्टोरी एंड। उससे ज्यादा कुछ मिलेगा? पर आपने तो काम किया ना उसके साथ। कई बार तो शायद पूरा प्रोजेक्ट बना दिया होगा, पर ग्रेड किसके रिपोर्ट कार्ड में जाएंगे? ब्रदर और सिस्टर। ऐसा तो है नहीं कि आपके किसी सब्जेक्ट के ग्रेड कम हो गए तो उसमें जोड़ देंगे आपके मार्क्स। अंडरस्टूड? दिस इज दिस गाइस, आप काम तो कर रहे हो बट रिकॉग्नाइजेशन इज nil. In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agriculture plot where they find work. This usually happens among the family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engage 8 people. कई बार क्या होता है, जैसे 5 लोगों का काम है, 8 लोग घुस गए, पूरा दिन काम करने की जगह ना 2 घंटा काम करके फिर 1 घंटा तो 8 लोग गप्पे मार रहे हैं, तो वो काम तो तुम्हारा 8 ही दिन में खत्म होने वाला है, क्योंकि रोज वो ज्यादा लोग आ गए पर फिर ज्यादा टाइम गप्पे में चला जाता है ना, गॉसिपिंग में। तो घूम फिर के काम तो 8 दिन किया, ज्यादा लोगों ने भी किया और कोई चेंज नहीं आया आउटपुट में। The work requires the service of 5 people but engage 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. They contribute. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. यानी अगर वो नहीं भी काम करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ना प्रोडक्टिविटी घटेगी ना बढ़ेगी। The field requires the service of 5 people and 3 extra people are disguised unemployment. अब seasonal और disguised unemployment clear हो गया बेटा? Any confusion? In case of urban areas, educated unemployment has been a common phenomenon. Many youth with matriculation, यानी 12th pass किया होता है, graduation and post-graduation degrees are not able to find job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. क्योंकि आप एक स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं किसी एक क्वालिफिकेशन में, जब उस फील्ड में जॉब नहीं मिलता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एजुकेटेड पर्सन टू गो एंड एडजस्ट, बिकॉज आपको एक ही चीज का स्पेसिफाइड नॉलेज है। अगर वो काम आपको नहीं मिलेगा और आपको फट से दूसरा, अब सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीए हो, ठीक है, अब आपको कोई बात जाके बोले लैब में, आपके पास मास्टर्स, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है ना, तो आपके पास अच्छा डिग्री है बट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में काम नहीं मिल रहा और आपको जाके कोई बोले कि जाओ ना भाई लैब में थोड़े दिन काम कर लो, अब वो समझ आएगा सब कुछ केमिकल्स और वो सब? शायद 10th के बाद पढ़ाई नहीं होगा क्योंकि कॉमर्स लिया था। सो नॉट पॉसिबल। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बारी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दे देंगे वो कर सकता है बट 100% पोटेंशियल नहीं दे पाएगा बिकॉज ही इज नॉट क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड टू डू दैट. So at times certain places you can do compromise but then output and you won't be excel. There will be not, the result will be good and you won't excel. जैसे आप लोग हो, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, हर बच्चे का स्पेशलाइजेशन होगा अपने सब्जेक्ट में, ऐसा हो ही नहीं सकता. और पढ़ाई को छोड़ के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका क्रिएटिव आर्ट अच्छा होगा, ड्राइंग अच्छा होगा, कई लोग गुड प्लेयर होंगे, एथलीट होंगे, कई बच्चे म्यूजिक डांस बहुत अच्छा करते होंगे, है ना. अब जो बच्चे को सपोज एक एग्जांपल बता रही हूँ, एक बच्चा है म्यूजिक में, वो कीबोर्ड गिटार बहुत अच्छा बजाता है, ठीक है ना. अब स्कूल के बैंड में एक दिन ड्रमर नहीं आता, उसको जाके वैसे तो नहीं बोल सकते बेटा जा ड्रम बजा दे एक बारी के लिए, बिकॉज वो उसकी फील्ड है, म्यूजिक है, उसको आइडिया हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, बट स्किल और वो ट्रेनिंग नहीं हो सकती उसके पास. कई चीजें बेटा हम देखते देखते सीख जाते हैं बट जरूरी नहीं है ना कि आप उस लेवल, उस क्वालिटी का काम कर पाओगे. जितना अच्छा गिटार बजा सकता है जरूरी उतना अच्छा ड्रम बजा सकता है वो. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in other. यानी पैराडॉक्सी मींस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि कई बार क्या होता है कि जहां पे
वैकेंसीज हैं, सपोज कोई भी एक फील्ड में हमारे पास वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है, और जहां वैकेंसी नहीं है उस कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सो देयर इज कंप्लीटली मिसमैच। आज तो नहीं, बट आज से 15 इयर्स बैक अगर मैं जाऊं ना, तो पहले पता है क्या होता था, साइंस स्ट्रीम लेने वाले बच्चों के पास 2 ही प्रोफेशन होते थे, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। अभी तो साइंस में यू हैव बम्पर, और पहले के जमाने में इंजीनियरिंग भी 3 तरीके की होती थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका सिविल इंजीनियरिंग। आज का तो इंजीनियरिंग की अगर कैटेगरी आप खोलोगे तो 25 तो आपको ऐसे लाइंस मिल जाएंगी। तो क्या हो गया था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने सारे इंजीनियर फ्लडेड हो गए थे, वो भी इन 3 ही कैटेगरी में, जो हमें उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं था, सो दे वर जॉबलेस, एंड मेनी सिविल इंजीनियर्स हैव टू माइग्रेटेड टू गल्फ कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब। क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्रीज डेवलप हो रहा था। आज भी हम देखते हैं तो हमने कई बार न्यूज में उसमें देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गल्फ कंट्री में मिलेंगे। कौन बनाता है? वो सिविल इंजीनियर्स। यस, there is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a breadth of technical skills required for economic growth। यानी आपके पास क्वालिटी है, टेक्निकल स्किल है, बट जिस तरीके की टेक्निकल स्किल है उस टाइप की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जो टाइप की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वैसी टेक्निकल स्किल नहीं है। सो देयर वाज कंप्लीटली मिसमैच एंड इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। How can you say that unemployment leads to wastage of manpower resources? Ma'am, बोलो माही। ma'am, because many men had educated, but that education was wasted. No one take them in on the job, and they were unemployed. So that training was wasted. Unemployment leads to wastage of manpower resources. The person itself, parents and family members have put lot much efforts and funds, has invested in their education and health, so that in later years they get the return that they should get good job. But as they are not getting desired job, the manpower, हमने कहाँ पे पैसा लगाया और इन्वेस्टमेंट किया? मैन पावर में। ठीक है, अब उनको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो मैन पावर वेस्टेड हो गया। People who are an asset for the economy turns to be liability. अब ये लोग जिनके ऊपर हमने पैसा लगाया, एजुकेशन दिया, गुड फूड दिया, हेल्थिंग फैसिलिटीज दी, हमने क्या सोचा था ये हमारी कंट्री के लिए एसेट होंगे, हम इनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, कल को ये लोग काम करके जीडीपी इंक्रीज करके इकोनॉमी बढ़ा के रिटर्न देंगे। बट जब इन्हें जॉब नहीं मिलती है तो एसेट की जगह वो हमारी लायबिलिटी वर्जन, क्योंकि जब कई बार तो कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाया होता है लोन लेके, तो वो लोन का रीपेमेंट तो करना पड़ता है उनको। उन्होंने क्या सोचा होता है कि अभी हमने लोन ले लिया, 2 साल बाद बच्चा पढ़ लेगा, उसको जॉब मिल जाएगी तो वो अपनी जॉब से ही लोन का रीपेमेंट कर देगा। पर जब उसे जॉब नहीं मिलती है तो पेरेंट्स को ही, तो उसके लिए उनके लिए लायबिलिटी हो गई ना। वो इतना इन्वेस्ट किया और रिटर्न में कुछ नहीं मिला उनको। Yes, People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social wastage. Unemployment tends to increase economic overload. क्यों? क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इकोनॉमिक ओवरलोड को इंक्रीज करेगा, उसका रीजन है, एक तरफ बहुत सारा पैसा लगा दिया उनकी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन और सब पे, दूसरी तरफ ये पैसा लगाने के बाद जब उन्हें अर्न करके कंट्री को और फैमिली को सपोर्ट करना था, दे आर सिटिंग आइडियल, दे नीड टू बी फेड, दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद द बेसिक फैसिलिटीज। सो इससे क्या हो गया, आप पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ गया। पहले तो वो लोन वोन लिया उसको रीपे करना है, दूसरा वो कुछ कर नहीं रहा है तो उनको खिलाना पिलाना, उनका सारा खर्चा उठाना है। सो 2 साइड एक्सपेंसेस हो गया, डबल हो गया उनके लिए, तो बर्डन ज्यादा हो गया। The dependence of unemployment on the working population increases, the quality of life of an individual as well as the society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. Okay.
सो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, होल सिस्टम विल बी डिस्टर्ब. Hence unemployment has a detrimental impact on the overall growth of the economy. Increase in unemployment is an indicator of depressed economy. It also wastes the resources which could have been gainfully employed. If people cannot be used as the resources, they naturally appears as a liability to the economy. यहाँ तक कुछ भी ऐसा है बेटा जो आपको नहीं समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, फिर मैं आगे आगे जाती जाऊं और आप लोग बाद में मुझे बोलो. नो मैम, नो डाउट, समझ आ रहा है सब कुछ. अभी तक जो ये जो लास्ट में पढ़ा रही हूँ ना, वो ड्रॉबैक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्या क्या नुकसान होता है अनएम्प्लॉयमेंट से. अंडरस्टूड? Yes. In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represent with low income and productivity are counted as employed. अब एक और प्रॉब्लम है इंडिया जैसे देश में, जब आपको अपनी क्वालिफिकेशन, कैलिबर, ट्रेनिंग, स्किल के हिसाब का जॉब नहीं मिलता, फॉर द सर्वाइवल यू एक्सेप्ट अ सब स्टैंडर्ड जॉब, जहां पे आपके स्किल्स का इतना यूटिलाइजेशन नहीं होगा, आपके कैलिबर का इतना यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इवन यू विल अर्न लो. अब वो अर्न तो कर रहा है तो वो लोग क्या कंसिडर्ड होंगे, एम्प्लॉयड ही कंसिडर्ड होंगे ना, बिकॉज वो कमा तो रहे हैं, मे बी अपने कैलिबर जितना नहीं कमा रहे, उस लेवल का अर्निंग नहीं हो रहा जितना हैवी इन्वेस्टमेंट किया. अब जैसे सिंपल है, आपने कोई मशीनरी को अपने यूनिट में इन्वेस्ट किया, खरीद के लाए और उसको इंस्टॉल किया. अब वो मशीनरी से आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, सपोज आपने एक गारमेंट मशीनरी थी, आपका एक्सपेक्टेशन था उस अकेले मशीन से रोज के 100 शर्ट्स बन के निकलने चाहिए, ठीक है, बट समहाउ 80 ही रोज निकल रहे हैं, तो मंथ के एंड में रोज के 20 तो 600 शर्ट्स का लॉस हुआ आपको. आपके तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो हो रहा है, मे बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स तक नहीं हो रहा. इन द सेम वे आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया है, बट नॉट अप टू द योर कैलिबर नॉलेज एंड स्किल, so you cannot be considered as unemployed, but definitely it's not good. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on a bare subsistence level. Up sitting idle will not possible for them because they need to survive. So they compromise and accept whatever job they got because survival is a major issue. Maybe they are not getting good income, but at least they will get that much of income which can satisfy their basic needs, can provide food to their family. Moreover, the employment structure is categorized by self-employed in the primary sector. The whole family contributes in the field, even though not everybody is really needed. So there is a disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produce raise reduced the hardship of unemployment in rural sectors. But this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of job. ये समझ आया ना कि नहीं समझ आया पैराग्राफ? एग्रीकल्चर वाला जो मैंने पहले समझाया था, फैमिली मेंबर सारे काम करते हैं. वासु ने बोला था ना कि बाद में 2 दिन, किसने बोला था कि 2 दिन जाके नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काम कर सकते हैं वो लोग? माही ने बोला था. अब इस केस में कैसा हुआ, सारे फैमिली मेंबर्स ने काम किया, अब क्या हुआ, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, उतना का उतना ही था. तो लॉन्ग रन में टू मेक अप विद द एक्सपेंसेस they need to go and search or migrate to other places for the search of job. क्योंकि उससे कुछ भी, क्योंकि शुरू में वो लोग हेल्प जरूर कर रहे हैं, काम रिड्यूस हो गया होगा, बर्डन रिड्यूस हो गया होगा, बट देयर इज नो मॉनेटरी गेन. There is no monetary gain. मैम इट मींस मैम जो हेल्प भी हुई उससे उनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ.
ओके हाँ, क्योंकि कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो टू मेंटेन द एक्सपेंसेस, जैसे जैसे आपका फैमिली बढ़ेगा, आपका लैंड एरिया तो बढ़ने वाला नहीं, बट टू मेंटेन दैट एक्सपेंसेस आप क्या करोगे, धीरे धीरे फिर जैसे कुछ महीने खाली रहेंगे तो जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है वो माइग्रेट होना शुरू करेंगे, सिटीज में जाना शुरू करेंगे और जॉब्स करेंगे, फिर हार्वेस्टिंग सीजन में फिर वापस चले जाएंगे. तो लाइक दिस दे ट्राई टू कोप अप. Let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. Which were the three sectors I have mentioned earlier? Seasonal See. unemployment. Seasonal, disguised, unemployed. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर. सेक्टर बोला, सेक्टर बेटा मैंने, किस सेक्टर में, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देयर आर थ्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. अब हम लोग ये देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं. ओके, नाउ एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्सॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. यानी इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, because our 60 to 70% population is engaged in agriculture. In recent years, there has been a decline in dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector. अब जैसे मैंने कहा ना surplus, अब एक फैमिली है, 2 या 3 भाई हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, वो सब कर सकते हैं. अब क्या होगा, जैसे जैसे पहले एक ही भाई था, उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे और 2 खाली भाई थे, फिर दूसरे भाई की शादी हुई, फिर तीसरे भाई की शादी हुई, उसकी वाइफ है, तो फैमिली मेंबर बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए. अब सारे मिलके काम करने से प्रोड्यूस तो इंक्रीज नहीं हुआ लैंड का, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. अब क्या होने लगा होगा कि वो तीनों में से 1 या 2 भाई होंगे जो सेकेंडरी सेक्टर में चले गए होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने लगे होंगे, या टर्शरी सेक्टर में चले गए होंगे, टेम्पो चलाने लगे होंगे, ट्रांसपोर्ट करने लगे होंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज, किसी ने दुकान खोल के रख ली होगी. फिर वो जब दुकान खोल के रख लेगा तो क्या करेगा, हार्वेस्टिंग के कुछ दिनों में 10-15 दिन जब बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग में काम की जरूरत हो, 15 दिन दुकान बंद कर देगा और अपने भाई को हेल्प करा देगा. ऐसे in the secondary sector, small scale manufacturing is the most laborious absorbing. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology, and so on. Let us read a story to know how people could become the asset for the economy of the village. Just a minute. Okay. Now there is a one story which help us to understand. There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its members. Okay. Each family met its needs by the member making their own clothes, teaching their own children. One of the families decided to send one of its son to an agricultural college. अब समझो, एक छोटा एरिया था जहाँ पे सारे फैमिलीज थे. अब वो लोग सारा काम आपस में मिलके कर लेते थे, जैसे अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते थे, ठीक है, खुद ही कोई दो फैमिलीज ऐसी होंगी जो कपड़े बना लेती थी, मतलब अंदर ही अंदर सारा काम कर लेते थे. उसमें से एक जने ने अपने बेटे को एग्रीकल्चरल कॉलेज में भेजा. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro engineering and came back to the village. He proved to be a creative, to be so creative that he could design an improved type of flour, which increased the yield of the wheat. यानी वो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सीख कर आया था, उसने कुछ ऐसी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता था. Thus, a new job of agro engineer was created and filled in the village. अब वो तो एक गया था, अब धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे जाने लगे. The family in the village sold the surplus in the nearby neighboring village. They earned good profit, which they shared among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat, with the help of government, opened a school.
a teacher was recruited from a nearby town. All the children of this village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in tailoring. She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well-tailored clothes. Thus, another new job, that of a tailor, was created. This had another positive effect. The time of the farmer in going far to buy the clothes was saved. As the farmer spent more time in the field, the yield of the farm went up. This was the beginning of the prosperity. The farmers had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to others who come to the village market. Over a time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many like teachers, tailors, agro-engineers, and many more. This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled it to involve in a place rich with complex and modern economic activities. Examples like, what do you understand with this example? मैम अगर एक या एजुकेटेड है तो मैम उसके अलावा दूसरे रीजन भी कर सकते हैं. Okay, very good. What else? Is it only education is there? No, ma'am, skill also. Is it- training. नहीं, आप पूरी स्टोरी से निर्मित ने एक चीज बोली, ठीक है, एजुकेटेड. सो फर्स्ट थिंग, दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन. स्कूल वूल खोलने को, दे इवन दे प्रमोटेड देयर चिल्ड्रन, एंड द रिटर्न वाज they day by day in each area they were able to grow and prosperous. है कि नहीं? नए नए जॉब्स उसमें अंदर ही, जैसे सब जने अगर एग्रीकल्चर में जैसे टेलर का जॉब खुल गया, टीचर का जॉब खुल गया, एग्रो इंजीनियर का जॉब खुल गया, अब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो मार्केट तक अगर गुड्स ले जाने हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा आपको, कि नहीं चाहिए होगा? And ma'am, the village get developed. And slowly the village became more and more prosperous. Yes, do you agree for that? Yes, ma'am, and everything was available in village only. And maximum goods and services were available inside the village, so they have stopped wasting the time to go far away and get the things. Yes. Yes. Now, we will start with the discussion of question answers. Hope you will get the worksheet for the same chapter soon. Okay. Just a minute. You all sit. Okay, let us start discussing the question answers bit of this chapter. Okay, ma'am. Chalo. This Sunday also you people have test. Yes, ma'am. Which subject? नहीं बताया है. Ma'am, but I think so SS because Huh? maths. Ma'am, but I think so SS because maths and English tests are done. नहीं सुनाई दे रहा माही. Ma'am, I think so SS will be there because maths and English tests are done. नहीं होगा क्योंकि मैंने पेपर ही नहीं बनाया. तुम टेस्ट कैसे दोगे? मुझे पेपर तो बनाना पड़ता है ना. याद रखना, जब भी मेरी अब टेस्ट होगी, चैप्टर 1 and 2 ज्योग्राफी लूंगी, दोनों. मैं 2 ही चैप्टर की टेस्ट लूंगी, 1 and 2 लूंगी, और मैप खरीद के रखना, मेरे क्वेश्चन पेपर में मैप होगा. Yes, ma'am. civics I का have got बाकी है it. टेस्ट. हाँ, मैम जहाँ तक मुझको याद है सिविक्स का टेस्ट बाकी है. सिविक्स का चैप्टर 1 ये जो हमने किया था सिविक्स का मेरी चैप्टर. मर्जी है ना बेटा. मैंने सिर्फ अभी तक तुम्हारा एक ही टेस्ट लिया है, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. मैं अपने हिसाब से ले लूंगी, डोंट वरी, मैं धीरे धीरे सब ले लूंगी, तुम चिंता मत करो. ये 2 चैप्टर कनेक्टेड है, इसीलिए सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट दे रहे.
क्योंकि मंथली टेस्ट में ज्यादा कंटेंट नहीं होता, 2 से 3 चैप्टर देने होते हैं, मुझे मैप और वो सब देना है, तो एक बार ये 2 सेट चैप्टर्स क्लियर हो जाए ना तुम्हारा भी एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा. I'll let you know, don't worry. Now what do you understand by people as resources? चैप्टर का टाइटल और मैंने एक्सप्लेन किया था, people as resources. One is Mahi. Yes, Mahi. People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. तुम कहाँ से पढ़ रही हो ये आंसर? मैम बुक से. Okay. This is एकदम perfect answer है, इसको मार्क कर दो. This is your answer number 1. It is on the first page. Yes. Yes, ma'am. First page, second para. Here, can you try second one? How is human resources different from other resources like land and physical capital? ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, कोशिश कर सकते हो? Yes, ma'am. हाँ बोलो. Land and physical capital, in that we need to invest. If we have invested, but we need to work on that field, so human resources required for that. See, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी. तुम्हारा कंटेंट राइट है, बट लिखने के टाइम कैसे लिखोगे ना, वो ऐड ऑन करती हूँ. ठीक है? लाइक सी human capital, land and other or land and physical capital, yes, are fixed and limited. आपने एक बार उसको डाल दिया, आपने एक बार जमीन ले ली, तो क्या वो अपने आप बढ़ती है? मशीनरी बढ़ती है? नहीं. But whereas human resources can be increased, क्योंकि human resource में अगर आप education, health benefit दोगे तो उसका आउटपुट बढ़ेगा. समझ आया? सो आप ऐसे लिख सकते हो, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल और लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड लिमिटेड, whereas human resources can be nurtured through education and health. Second point, human resources can bring change to land and fixed capital. आप चाहो इंसान हो, आप प्रॉफिट करके या कैसे भी करके, मेरी फैक्ट्री की जमीन है या मेरे लैंड की जमीन है, आप खरीद के लैंड बढ़ा सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो. एक मशीनरी डाली है, प्रॉफिट अर्न करके दूसरी मशीनरी इन्वेस्ट कर सकते हो. समझ आया? सो ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ब्रिंग चेंज इन अदर रिसोर्सेज, while other resources cannot bring change in human resources. मशीन ह्यूमन को चेंज नहीं कर सकता. आपकी लैंड ह्यूमन की, हाँ, सिर्फ ह्यूमन को कौन चेंज कर सकता है? एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, ऐसा. Yes, ma'am. 2 पॉइंट हो गई आपके क्लियर? Yes, ma'am. थर्ड में आप क्या लिख सकते हो? ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. हम लैंड एंड फिजिकल कैपिटल को यूज कर सकते हैं, whereas लैंड ह्यूमन को यूज नहीं कर सकता. वो अपने आप चल के नहीं बोलेगा तुम आओ मेरे पर खेती करो या मशीनरी लगाओ. आया समझ में? Yes, ma'am. So third point, human resources can make use of land and physical capital, whereas land and physical capital cannot become useful of its own. जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज उस पर मशीनरी लाके लगा दोगे, उसको ऑपरेट नहीं करोगे, वो अपने आप, तो ऑटोमेटिक मशीनरी के लिए भी स्विच तो ऑन करनी पड़ेगी ना. Yes, ma'am. आया समझ में? Yes, ma'am. ओके. What is the role of education in human capital formation? अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और ह्यूमन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो लिखना है. सो कैन आई हैव फ्यू पॉइंट्स? एक इंसान एक एक पॉइंट ही देगा. अहाना. Ma'am, it makes people more capable to do any job. Okay, very good. Thank you. It makes human beings ready to perform the jobs. Rashvi. Educated people gain through their higher income. Educated people. Educated people can gain higher incomes. Yes, educated people can earn higher income and change the standard of living. Here.
Educated people increase Voice is lagging. the growth country. Educated people, बेटा बीच में आवाज चला गया था. Educated people grow helps in increase of growth of economy of the country. Yes, educated people can contribute in the development of the growth of the economy. Yes. Yes. Even educated people can help to grow and develop the society. Yes, ma'am. And they Yes, educated or literate people became the asset for the society. yes, ma'am. Okay. What is the role of health in human capital formation? Health का क्या contribution है human capital में, भव्य? Yes, ma'am. It makes the role of health in human is that it makes the person fit and fine to do work, to be capable of work and to grow the income. Okay, so points are clear. I need to just frame it. Yes. Healthier people have higher productivity because health of the person helps him to realize the potential. Yes. It improves the quality of life and the productivity or the contribution of human capital to the society is also increased. Good health enables the person to earn more and do regular income. ये दोनों क्वेश्चन 3 और 4 ओपन एंडेड क्वेश्चन है, पर मेक श्योर 3 to 4 पॉइंट्स अपने आप, जैसे वो हेल्थ वाला स्पेस है ना, उसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या क्या कहाँ हेल्प होता है. ठीक है. Now, what part does health play in the individual working life? निर्मित. मैम जैसे कि आपने पहले बताया था कि अगर कोई एक इंसान बीमार है, उसको कुछ लूजेस मोशन है, मैम वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा. अगर वो एक टीचर है तो अनहेल्दी पर्सन के आप लिख सकते हो पॉइंट्स कंपेयर करके. देखो ऐसे लिख सकते हैं, हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल लाइफ because only a healthy person can work or perform to his potential. An unhealthy person cannot work efficiently, cannot contribute to the country. Unhealthy person cannot take the challenges and which reduce the output and reduce the contribution to the economy. And ma'am, they become liability for the country. Yes, they become the liability for the family. वो भी ठीक है. Now, next question. What are the various activities undertaken in primary sector, secondary sector, and tertiary sector? वासु. मैं वो पिछले वाले का. ये भी तुम दे सकते हो, उसमें कुछ खास है नहीं है बेटा. 3 सेक्टर्स हैं. प्राइमरी सेक्टर में हमने लिखा था क्या है मोस्टली. आर्यन, चलो अब की बार आर्यन दे दो आंसर. मैम in primary activities include production, growing crops. In secondary sector it includes refining, then ओके कोई बात नहीं, ठीक है, वेल ट्राइड. प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली आएगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग. ये आपके बुक में दिया ही है, क्लियरली दिया है. सेकेंड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. टर्शरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज एंड इंश्योरेंस. ठीक है. Okay. Now next, what is the difference between economic and non-economic activity? अब इसके मैं 3 points difference between दे रही हूँ. राशि, would you like to try? चलो जितना आता है उतना बोलो, बाकी का मैं ऐड करूंगी. Activities that add value to the national income are termed as economic activities. In the other words, the activities that are performed for money are called economic activities. And एक मिनट क्या बोली तुम फिर से?
फिर से बोलो एक बार. In other words, the activities that are performed for money are also called economic activities. सुनो, कभी भी सेंटेंस इन अदर वर्ड से तुम डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट नहीं करो. ओके, सो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इट रिफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन. ठीक है, अब उसी का ऑपोजिट में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म ग्लैडली विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स विदाउट एनी इकोनॉमिक गेन. उसमें हम पैसे का कोई लेना देना नहीं होता नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड पॉइंट में, ओके, the main objective of economic activity is to add value to the national income. आप national income में add करते हो ना value. Okay, now the non-economic activities do not add any value to the national income as they are done for self consumption. आप अपने लिए करते हैं सिर्फ. Third point, economic activities are measured in monetary term. पैसे से गिनते हैं हम लोग. उसमें गुड्स भी आ गए, पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गए. And non-economic activities are measured in non-monetary terms. Is it clear? Yes, ma'am. आपका इंग्लिश का क्लास है आज इसके बाद? Yes, ma'am. Yes, Yes. क्योंकि बाकी के जो 8 के बाद के क्वेश्चन है ना, 8 to 15 ये हो जाएगा. प्लस नेक्स्ट वीक में वर्कशीट है, वो डिस्कस कर लेंगे. आई थिंक सो आपको मिल जाएगी वर्कशीट्स. और फिर उसके बाद आई हैव 2 ऑप्शन, Ma'am, either to start constitution or second chapter of history. ma'am, Second chapter of history. constitution, because in our annual syllabus constitution is written. एनुअल सिलेबस अभी से कहाँ से आ गया बेटा? मैम हमें ना एनुअल सिलेबस पहले से ही दिया जाता है कि एनुअल में तो मुझे पता ही है पूरे साल में आएगा ही कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्किप नहीं होने वाला है. कोई आया बीच में हिस्ट्री चैप्टर 2? हिस्ट्री में कितना फेवर कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओहो ओहो हो बाबा, हिस्ट्री भरा पड़ा है. ओके, मेरी स्कूल तो आपके पीछे चल रही है. ओके, कोई बात नहीं. मैम मेरी भी स्कूल पीछे ही चल रहा है. कोई बात मैं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैम अभी Okay. तो हम लोग डेमोक्रेसी वाले पे हैं. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. कॉन्स्टिट्यूशन वाले रेज करे सिर्फ. तो भी 4 बंदे तो हैं. लेट्स सी, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, सो आई एंड हियर. मैम हमें जियोग्राफी के